Hello everyone, I welcome you once again to my channel. Today we will be discussing this very important revision strategy for your upcoming CDS examination, which is happening on the 4th of this month, right? And दो ही दिन बचे हैं. I'm sure a lot of you are going through the feelings of nervousness and anxiety, which is very normal before the forthcoming of an examination. Almost everyone goes through similar kind of feelings. Even if they've cleared the exam, yet the feeling of nervousness and anxiety is pretty common. But please do not let your fear override you. You must have confidence on your preparation. सबसे important चीज़ है, please believe in your preparation. Please believe in the fact that you have prepared very well. You know, whatever you have prepared, you should know that you have put in your best effort. Believe in the preparation that you've done so far. It is going to help you, right? And like it is very famously said, there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure, right? So your revision strategy is very important because in 2-3 दिनों में आप जो करोगे, that is going to determine the course of your examination. So these are very crucial days. Please do not give up now. मेरी सबसे बड़ी advice यही है. Please do not give up practicing or revising right now. This is not the time to give up. Okay? You still have 2 days. Please make maximum use of those. So what we are going to do over here is we are going to discuss how you should go about preparing a revision strategy. Now I'm sure all of you are aware, but for the sake of saying it, let me repeat it, that your CDS examination has primarily 2 parts, that is English and GS. But those of you who are appearing for IMA and AFA will also be appearing for your maths examination, right? So these are the 3 elements of your exam. आपको इन 3 sections के answers बताने हैं and that will conclude whether you are qualifying or not. Now in your English question you will get one paper, you will get 120 questions. Same is with GS, right? And each question will give you plus 0.87 marks and negative is minus 27. These are the allocation of marks that has been made for CDS examination. So now if I tell you about my strategy, it would be that I wanted to maximize my score through English. English was a section which I knew would maximize my score. This will maximize my score. I knew that, right? Your English examination is in total of 100 marks and a target of 75 plus marks is something which is very essential. All of you should have this target. It's not a very difficult thing to do. Anyone and every one of you can do that. Why I am saying this is because most of us have studied in English medium schools. We have read English throughout our life. बचपन से लेके आज तक आप English पढ़ते ही आए हो. Plus your graduates and some of you are even venturing further into your education through post graduation. You are on jobs, some of you. So you are using this language almost every day. And for a maximum number and maximum time period of your day आप इस language का इस्तेमाल कर रहे हो, which gives me a fair idea that you are already acquainted with the language. You know the pros and cons of English. So you should concentrate on maximizing your number through English. English is a paper जिसमें इतने सारे sections हैं which can give you full 10 marks. कोई एक भी number नहीं उनमें कटता. जैसे कि your arrangement of sentences. One section which will give you 100% accuracy. कौन से हैं अरेंजमेंट वाले सेंटेंस? PQRS वाले हैं और S1 एंड S6 वाले. These 2 questions which will give you, I am telling you, there is no scope of negatives in these. इनमें negatives आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि you just have to look for what? Complementary pairs. You just have to look for complementary pairs. आपको ढूंढना है कि कौन से सेंटेंस की अरेंजमेंट कौन से के बाद आएगी, right? And once you find those complementary pairs, options आपके पास हैं. You can very well use the method of elimination, right? You can very well use this method in English examination as well. हम इसको GS में तो use करते ही हैं, but I advise you please use elimination in your English examination also. It's very essential that you do this. Then you have your section like your reading the passage, reading comprehension. Passage is another thing which can give you full marks. Why I am saying this is because जो answer है that is right in front of you. Your passage is right in front of you. And I will also tell you how to solve the passage. मुझे पता है बहुत सारे students ये बोलते हैं कि उनका बहुत time waste हो जाता है passage में. So I'll tell you what to do. What you have to do is follow these 3 very simple steps. First is just read the questions.
Don't read the passage. I am repeating it again. Do not read the passage. Read the questions straight away. Then you look for the important words in your question. आपके क्वेश्चन के important words क्या है? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि why is the author preferring swimming over exercising, jogging, say for example. So you know what are your important words? First is preference. आपको बताना है कि उसकी preference swimming क्यों है, jogging क्यों नहीं. और दूसरे दो वर्ड हैं swimming and jogging, right? Swimming and jogging, 2 words. ये 3 शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उस क्वेश्चन में. अब आपको तीसरा वेरी सिंपल स्टेप इसके बाद क्या करना है, यू हैव टू लोकेट दीज इन द पैसेज. इन्हीं शब्दों को आपको पैसेज में लोकेट करना है, कहाँ लिखा हुआ है, एंड योर आंसर विल कम पॉपिंग इन फ्रंट ऑफ यू. यू डोंट हैव टू रीड द होल पैसेज. That is something which definitively wastes your time. Please don't read the passage. Read the question, look for important words, mark them and then locate them in the passage. Definitively it will give you the correct answer, क्योंकि leverage आपके पास ये है कि आपके पास already options हैं. तो अगर आपको थोड़ी बहुत confusion भी है ना, option पढ़ के वो confusion निकल जाएगी. And you can score full 5 marks out of your passage. I can guarantee you this is not a difficult thing to do at all. Trust me on this. इसके बाद आता है आपका vocab part, something that a lot of you have qualms about. So many of you complain कि हमें antonyms, synonym और idioms नहीं आते. Usually this is the part of your vocab, right? Your antonyms, your synonyms and then your idioms and phrases. Now what you can do for your vocab part is, मान लीजिए आपको शब्द का मतलब नहीं पता. Say for example I give you the word tumultuous. You are given the word tumultuous. आपको इसका मतलब नहीं पता. ओके, फेयर इनफ. यू गिविंग 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4, राइट? डेफिनेटिवली देर विल बी 1 ऑप्शन जो तीनों से अलग होगी. 3 ऑप्शंस एक जैसी और एक बिल्कुल अलग होगी. जो बिल्कुल अलग है दैट इज योर आंसर. 100% दैट इज योर आंसर. अब इसके लिए क्या है, हो सकता है आपको वर्ड जो क्वेश्चन में पूछा उसका मतलब ना पता हो, लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शंस के मतलब पता हो, राइट? वेरी मच पॉसिबल. या एटलीस्ट आप 2 को एलिमिनेट कर सकते हो, 2 में कंफ्यूजन बचेगी, राइट? एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो. आई बिलीव अ लॉट ऑफ यू कैन डू दिस. सो प्लीज अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी. एलिमिनेशन करो, लुक फॉर द 1 वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब इडियम्स की अगर मैं बात करूं, इडियम्स में देखो, से फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द इडियम बुल इन चाइना शॉप. अ बुल इन चाइना शॉप, मान लो आपको मैंने ये इडियम दे दिया, राइट? अब यू नो योर इडियम्स एंड फ्रेजेस आर डिराइव्ड आउट ऑफ योर एवरीडे हैपनिंग. रोजमर्रा जिंदगी में हमारे साथ जो चीजें होती हैं ना, उन्हीं से इडियम्स बनते हैं. सो फिट इट इनटू योर रूटीन लाइफ. आप सोचो चाइना शॉप में अगर कोई बुल चला गया तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी, है ना? और इसका मतलब भी ये है, इट मीन्स अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, राइट? और वो प्रिटी एविडेंटली इससे हमें पता लग रहा है. अब मान लीजिए मैं आपको बोलूँ, इडियम आया आपके पास टू ईट अ हम्बल पाई. डेफिनेटली इसका मतलब खाने से नहीं है, इसका खाने देने से कुछ भी लेना देना नहीं है आपका. अगर इतनी सिंपल बात थी तो उसके लिए मैं इडियम क्यों बनाती, है ना? कुछ तो उसका डीप मीनिंग होगा. तो जो आपको बहुत सिंपल ऑप्शंस दिए हुए होंगे ना, आप उनको फटाफट एलिमिनेट कर देना. ऑल्सो व्हेन सॉल्विंग वोकैब, आप ये आइडेंटिफाई करो कि वो वर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव. अब अगर सिनोनिम ढूंढना है आपको, वर्ड पॉजिटिव है तो सिनोनिम डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा ना, गो फॉर इट. और अगर एंटोनिम है तो पॉजिटिव वर्ड का एंटोनिम नेगेटिव होगा. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम. उल्टा मार्क करके मत आना. इस केयरलेस मिस्टेक का गिल्ट बहुत गंदा होता है. प्लीज डोंट पुट योर सेल्फ थ्रू दिस गिल्ट. ओके, देन यू हैव योर क्लोज टेस्ट, अनदर एलिमेंट विच कैन गिव यू फुल 10 मार्क्स. फुल 10 मार्क्स आपको इसमें से मिल सकते हैं, मेरी गारंटी है इस बात की. क्यों? क्योंकि मैंने खुद स्कोर किए हैं. हाउ डिड आई स्कोर इट? You just have to look at the options and eliminate those which do not fit the criteria. Go with the most appropriate answer. Most appropriate कौन सी चीज़ है उसको आप फिट करो. And link the sentences. पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक करो, आंसर अपने आप आपको मिलेगा. ठीक है? So these are a few things for which you can be careful in your English examination. I would suggest you should go for a score of 80+. अगर आप अपने आप को 80+ का टारगेट दोगे तब कहीं जाके आप 75+ हो जाओगे.
राइट. The second element of this exam, which is very troublesome for all of you, is your GS. GS एक ऐसा सेक्शन है जिसको लेके बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रॉब्लम होती है या दिमाग में उनके ये बैठ जाती है बात कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सेक्शन. Let me put this in a very straightforward manner. UPSC's examinations are nothing but it just covers your basics. They just look for your basics. Are you clear on the concept or not? It's as simple as that. अगर आपको concept आता है, believe me, nothing in this world can stop you from giving out the correct answer, right? So अब GS में, if I tell you my strategy, I focused on polity. Polity के बाद I focused on geography, साइंस एंड करंट अफेयर्स. ये 4 सेक्शन ऐसे थे जिन पे आई हैड गिवन माई फुल कॉन्सेंट्रेशन, राइट, बिकॉज आई न्यू दीज आर इनफ टू गिव मी 40 मार्क्स इन GS. इतना पार्ट इनफ है. लुक, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. यू शुड प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज बहुत ज़्यादा याद कर लिया लेकिन पेपर में आप रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ याद करने का, राइट? कम याद करो लेकिन इतने अच्छे से याद करो कि उस सेक्शन में आपका कुछ भी नेगेटिव ना जाए. जस्ट अश्योर योरसेल्फ दैट. लुक, यू हैव 120 क्वेश्चंस, राइट? आपको GS के पेपर में भी टोटल 120 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं. एंड ऑल यू हैव टू डू, इफ़ यू लुक एट दीज, तो फिर वही मार्किंग स्कीम आती है दैट फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 0.83 मार्क्स, राइट? एंड फॉर एवरी नेगेटिव क्वेश्चन आपके 0.27 कट हो जाते हैं. दैट इज़ योर नेगेटिव मार्क्स, राइट? सो एक्चुअली 120 में से आपको सिर्फ 50 डूएबल क्वेश्चंस ढूंढने हैं. सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको ऐसे ढूंढने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हों, और ये 50 क्वेश्चन विल गिव यू 41.5 मार्क्स. सो व्हाट इज़ योर टारगेट? प्लीज़ रिमेंबर, आपका टारगेट 120 क्वेश्चन नहीं है. आपका टारगेट है ये 50 क्वेश्चन जो आपको करेक्टली 41.5 नंबर देंगे. तो अगर आपके, मान लीजिए, यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड से 77 मार्क्स इन योर GS एंड यू स्कोर से 40 मार्क्स in your GS examination, so your total will come out to be 170, and that will definitively lead you to clear the paper. Believe me, this is enough for you to clear the examination. अब इन sections में आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? अगर आप PYQs देखो तो you will see a pattern in the exam. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेटिवली इन पेपरों में आते ही हैं. जैसे अगर आप पॉलिटी को देखो, फंडामेंटल राइट्स, देन योर फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट, DPSPs, another very important topic. इस बार प्रेसिडेंट ऑल्सो, बिकॉज प्रेसिडेंट के अभी इलेक्शन हुए हैं, बहुत चांसेस हैं कि आपको प्रेसिडेंट पे डेफिनेटिवली क्वेश्चंस आएँ, राइट? देन ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, राइट? देन योर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोरोइंग वगैरह सब कुछ आता है. दीज आर अ फ्यू सेक्शंस जिनसे डेफिनेटिवली क्वेश्चन आते हैं. अब आप देखो, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि यहाँ से पेपर आएगा. अगर आप फिर भी वो नहीं पढ़ रहे, देन इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द एग्जामिनर, राइट? देन अगेन, इफ़ यू लुक एट द ज्योग्राफी वाला पार्ट, फिजिकल ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है. हमें 2 तरीके की करनी है ना, फिजिकल एंड इंडियन. 2 तरीके की आपको ज्योग्राफी अटेम्प्ट करनी है. वेट, विल राइट इट डाउन बिलो. ज्योग्राफी का देख लेते हैं अब हम. तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं? थिंग्स लाइक ओशन करंट्स, राइट? देन हमारा अर्थ का इंटीरियर, अर्थ्स इंटीरियर. देन योर थिंग्स लाइक वॉल्केनोज, earthquakes, right, cyclones. Then you have your mountain ranges and deserts, mountain ranges, deserts, right, pressure belts, very very important. Then your atmosphere. यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको डेफिनेटिवली क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आते हैं ना. ओशनोग्राफी हो गया, चलो ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस आते हैं. सो देन यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ना. आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है. देन यू शुड डेफिनेटिवली बी एबल टू स्कोर इन दीज सेक्शंस. यही वो सेक्शन है जिनको आपको अच्छे से
रिविजन देनी है। देन नेक्स्ट इज़ योर इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। सो डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड बी एक्वेंटेड विद द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। यू शुड हैव अ पिक्चर इन योर ब्रेन, वेरी प्रिम एंड प्रॉपर, ऑफ बोथ फिजिकल एज वेल एज पोलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योर इंडियन फिजियोग्राफी। ये आपको आना चाहिए। इंडिया का मैप आपके दिमाग में प्रॉपरली होना चाहिए छपा हुआ। इंडिया में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? अगेन यू हैव योर माउंटेन रेंजेस, पूछ लेते हैं आपसे माउंटेन रेंजेस के बारे में। देन यू हैव योर नेशनल पार्क्स, राइट, वेटलैंड्स, लोकेशन पूछ लेते हैं आपसे इनकी। देन यू हैव योर मानसून, मानसून पे हर साल क्वेश्चन आता है। देन योर एग्रीकल्चर, खरीफ क्रॉप कौन से हैं, राबी क्रॉप्स कौन से हैं, ज़ैद क्रॉप कौन से हैं, कौन सा क्रॉप किस कंडीशन में ग्रो होता है। देन योर सॉइल्स, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन यू हैव योर मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स प्लस ओर्स, और ये भी कि वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं, राइट। देन यू आर आस्क्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांटेशंस जो अलग अलग जगह पे हैं, जैसे डेजर्ट की प्लांटेशन कैसी होगी, मैनग्रूव्स कहाँ पे हैं, राइट। देन आपका एस्चुरी कहाँ पे बनती है, डेल्टा कहाँ पे बनता है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ योर रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम बोथ साउथ एंड नॉर्थ। इन्हीं चीज़ों में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। बेसिकली दीज आर दी एस्पेक्ट्स जो आपको इंडियन ज्योग्राफी में फोकस करने हैं। इन चीज़ों पे आपका पूरा प्रिम प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। अब आता है अगला आपका जो सेगमेंट है, दैट इज साइंस। साइंस के ब्रॉडली 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, राइट। एंड दे आर आस्क्ड फ्रॉम योर 9th and 10th की एनसीईआरटी। क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, यू शुड नॉट रियली वेस्ट योर टाइम रीडिंग अप। अब आप 9th 10th की एनसीईआरटी अब उठाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वॉट यू कैन डू इज़ गो ऑन यूट्यूब, जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर PYQs on your 9th 10th की एनसीईआरटी ऑफ साइंस एंड सॉल्व देम। क्वेश्चन सॉल्विंग से आपको ज़्यादा याद रहता है। एंड दीज आर अ फ्यू एस्पेक्ट्स, जैसे बायो में आप लगा लो सेल वाला चैप्टर है जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। देन योर क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से डेफिनेटिवली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। केमिस्ट्री में आ जाओ आप तो आपको एसिड बेसिस सॉल्ट से क्वेश्चंस आते हैं। देन यू आर आस्क्ड अबाउट वेरियस काइंड ऑफ, किस टाइप ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है, राइट। देन यू आर आस्क्ड अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशंस जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोप किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। फिजिक्स में आपको बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, जैसे न्यूटन के लॉज, यू नो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देन योर ग्रेविटेशन का चैप्टर हो गया, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एंड वेरी बेसिक न्यूमेरिकल्स। सो इफ़ यू थरो विद योर 9th and 10th की एनसीईआरटी, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। एंड फाइनली वी कम टू द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, they hold a very very important position now. If you look at the recent trend of UPSC, current affairs को they are very very important. UPSC is basically focusing on current affairs बहुत ज़्यादा, right? And current affairs भी आपके बहुत ज़्यादा confusing नहीं होते. Current affairs are usually asked in a very simple basic manner. One liners आते हैं usually current affairs के, not very difficult to solve. If you are thorough with the last 6 months of your करंट अफेयर्स, देन यू हैव डन अ वेरी वेल जॉब। तब तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट आई वुड से 3 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ्स के साथ आप एक्वेंटेड होने ही चाहिए, उनके तो आपको कम से कम आने ही चाहिए करंट अफेयर्स। इफ़ यू डू दीज सेक्शंस प्रॉपरली, देर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग एनी लेस देन 40+ मार्क्स इन GS। बहुत आसान है ये करना। और GK के एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है आपको, यू हैव टू इन योर फर्स्ट रीडिंग, जब आप GS पेपर की फर्स्ट रीडिंग करोगे तो ओनली आंसर दोज क्वेश्चंस जिनको लेके आप 100% श्योर हो, पहले आप उतने क्वेश्चंस को मार्क करो। अगर आपके 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस ही 50+ के रेंज में चले गए, देन आई वुड आस्क यू टू नॉट टेक एनी रिस्क। इफ़ यू ऑलरेडी 50+ विद योर 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस, प्लीज़ डोंट टेक एनी रिस्क। लेकिन इफ़ यू आर रेंजिंग समवेयर क्लोज टू 30-35 क्वेश्चंस
देन आई वुड से सेकेंड रीडिंग लीजिए और वो वाले क्वेश्चंस कीजिए जिनमें आप 50% ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके हो, मतलब कि यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस एंड यू कैन टेक दैट रिस्क। आप 50% वाले क्वेश्चंस के रिस्क ले सकते हो इसमें, बट इन एनी केस आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक अ रिस्क ऑफ 80-20 कि 20% आपको पता है और 80% नहीं पता, ऐसा रिस्क मत लो, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग के बाद आप 50% वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें आपको एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपके 30-35 के स्कोर को अगेन 50 के आसपास ले जाएंगे एंड दे विल हेल्प यू टू सेल थ्रू। बट आई वुड अगेन से प्लीज पुश फॉर मोर मार्क्स इन योर इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी वेरी स्कोरिंग सेक्शन और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं आती। ट्रस्ट मी, आपने जो मॉक्स किए हैं ना, दे आर वेरी टफ with regard to the English that comes in your actual exam. It's very simple. And आपको तो मतलब CDS एग्जामिनेशन में तो आपको वो परोस के दे रहे हैं सारा कुछ, हर चीज़ आपको सेंटेंस के फॉर्म में मिल रही है। वेदर इट इज़ योर एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपको सेंटेंस के फॉर्म में मिलता है। तो इससे आपको क्या एडवांटेज है, यू कैन मेक आउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आप बहुत आराम से उस सेंटेंस का मतलब समझ सकते हो जो आपको उस शब्द को समझने में भी मदद करेगा। Like this is a bonus point that you're getting from UPSC. Please cash on to it. It's a very golden opportunity. You must cash on to it, right? इसके बाद आता है मैथ्स का एग्जाम। मैथ्स का एग्जाम इज यूजुअली वेरी लेंथी। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट इज़ जस्ट लेंथी। बहुत लेंथी होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाते। अगेन मैथ्स में भी आई वुड आस्क यू टू गो विद योर एक्यूरेट क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस पे जाओ जो एक्यूरेसी से आप कर सकते हो और क्विकली सॉल्व कर सकते हो। पहले आप वही क्वेश्चन सॉल्व करो बिकॉज आपके पास टाइम लिमिटेड है। एंड अगेन फॉर मैथ्स क्वेश्चन ऑल्सो आई वुड से प्लीज गो फॉर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। प्लीज गो फॉर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। देयर इज अ सेइंग फॉर सीडीएस एग्जाम, इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए यू शुड बी मासी, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। आई वुड इवन सजेस्ट प्लीज गो फॉर ऑल क्वेश्चंस, पूरे 120 करके आओ। दिस विल गिव यू अ लेवरेज, यू विल गेट मैक्सिमम स्कोर इफ यू डू दिस। Be massy in your paper of English, but be classy for GS and Maths. मतलब उनमें चूज करो, then you be choosy in that. उसमें आप चॉइस करो कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये नहीं आता। This will help you to solve your paper very very effectively. So I hope that this session has helped you to club up your points and it has helped you कि आप कौन से टॉपिक्स को उठाएं और रिवाइज करें इन 2 दिनों में, ठीक है। I wish you all the very best for your upcoming examination. And please like, subscribe and share my channel. I would very much like that if you do that. And मैं और भी रिविजन स्ट्रैटेजीज लेके आऊँगी। इनफैक्ट आपके CDS के एग्जामिनेशन के बाद I will also launch a full fledged class on YouTube जिसमें मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट बेसिक्स से पढ़ाऊँगी so that आप अपने अगले अटेम्प्ट में स्कोर को और भी बूस्ट कर सको। And I will also provide the description of my Telegram channel in the description box. लिंक दूंगी मैं आपको। You can join me there. मैं वहाँ पे डेली इंग्लिश और GS की क्विज कराती हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। And I also give additional information. I pass on additional information there as well. So you can join me on my Telegram channel. Thank you very much. All the very best. Give it your best shot. Please don't let your fear override you. You are bigger than that. You have prepared. You're ready for this battle. Thank you so much. All the very best.